each and every one of you. First of all, let me begin by apologizing for the slightly delayed start. It wouldn't be a Pakistani event if it started on time, would it now? Now, my name is Saima Suleiman. I am chair of the Spirit of Pakistan Festival, and tonight we have something really, really special for you. So it was definitely worth the wait. First of all, I want to embarrass a few people in the audience. We have the Zavia youth group in the house. Can we embarrass them? Give them a shout out. And another person I want to embarrass, Debbie. You didn't think you were going to get away with it tonight, did you? Can we give a massive shout out to Deborah, who is the CEO of the MAC? She's been absolutely amazing. Now, I'll get back into script now. So, as I said, we have something really special tonight. For generations, Punjabi storytelling has been about much more than stories. It's been about love, longing, family, separation, music, poetry, and places we call home. These stories have traveled from village to village, and one generation to the next, and across borders, and somehow, even after hundreds of years, they still speak to us. That is the magic of folklore. And tonight we bring something really special through the life of Sher Bano Karanja. This is a beautiful new production from Raqs Arts, bringing together storytelling, live music, poetry and dance to create an immersive journey into the hearts of the Punjab. At the center of the story is Sher Bano, a spirited young woman whose life becomes intertwined with a mysterious flute player inspired by the great tradition of Punjabi folklore. The production explores love, memory, and human connection, and does so through some truly beautiful music and storytelling. We're absolutely incredible and fortunate to have a really talented creative team. Ali Sher takes on the role of Ranja alongside Ranveer Kaur as Sher Bano, with a production written by our very own, the amazing Mona Shafiq. Can we give her a shout out? Many of you may not know, but Mona won the Spirit of Pakistan Rising Star Award in Culture. So look out for this one. So for many people in the audience, the music and poetry you will hear may be familiar. For some of you, it may be new. But what I ask is for you to immerse yourself. Now I get to I need to thank a few more people. I need to thank our amazing steering committee. Where are you guys? Can we give them a massive shout out to our steering committee? I would also like to thank our fantastic artistic director, Mukhtar Dar, all our volunteers and partners who have been absolutely amazing. I have to thank our funders, the Arts Council England, Birmingham City Council, the Mayor of the West Midlands, Richard Parker, for their support. And a special thank you to the MAC, our Kia Festival partners, our headline sponsors, Turkish Airlines, Birmingham Airport, Specsavers, Mia Property Group, and Clear Insurance. It's with support from institutions and organizations like this that we are able to make events like this possible. We're also delighted to have partnered with Edgbaston Stadium for the upcoming Pakistan versus England test match. So if you're planning to go, you can get 10% off your tickets by booking through our website. Yeah, we're doing our bit to support the team because, let's be honest, they're not helping themselves, are they, at the moment? So one really important thing which I'm going to get told off about if I don't mention, if you can see there's some QR codes dotted around the venue, this room. Please, 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 can I ask that you take a few moments after this event to give us your feedback. And I know a lot of you can put that you started late, so yeah, I'm already aware of that one. But please give us your feedback because it's really important to us, because it's going to help us plan for next year. Please give a warm welcome to the entire team of Sher Bano Karanja. So enjoy yourselves, enjoy the evening. Thank you.
ये कहानी है एक उम्मीद की, एक ख्वाब की, एक शराब की। ये कहानी है सदियों से सफ़र करते जज्बों की, आरजुओं की, उमंगों की। उसे तितलियां पसंद थी, वो जुगनुओं के संग थी, वो रोशनी थी, खुशबू थी, नम हवा का झोंका या सावन की पहली घटा थी। वो थी शहरबानो। वो बोलती तो लफ्ज़ों से फूल झड़ते, ख्वाबों में रहने वाली शहरबानो। मगर खरहाब की तरह उसकी तकदीर में भी एक अनोखी कहानी लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज़ तो मोहब्बत से हुआ, मगर जिसे अमर इश्क ने किया। ये है शहरबानो की कहानी। शहरबानो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर किस्मत ने उससे एक हादसे में उसके अम्मा अब्बा का साया छीन लिया। एक हादसे में दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूं तो शहरबानो शहर में पली बड़ी थी, मगर वालिदैन की वफ़ात के बाद उसे अपने आबाई गांव पंजाब जाना पड़ा, जहां उसके दादा दादी का घर था। ये कहानी उस ज़माने की है जब मोहब्बतें खालिस थी, जज्बे सच्चे थे, आंगन कच्चे थे और रिश्ते दिलों से निभाए जाते थे।
शाम ढलती तो दिए की मध्यम लौ में रेडियो पर लोक गीत गूंजते और बानों के पाँव खुद ब खुद थिरकने लगते। उसे मौसीकी से बेहद लगाव था। नजरिया जादू भरी पिया गे, नजरिया जादू भरी पिया गे, नजरिया जादू भरी पिया गे, नजरिया ओ दरियो प्रेम भरी पिया गे, नजरिया मेरे घर चले चली घर चलिया गगन जतनयब करिए हालीना पिपड़े मोहे चैन एक घड़ी पिया के नजरिया भगवदनी सारी गगन सारी सारी भगवदनी गगवदनी सारी भगवदनी सारी नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया एक दिन शहरबानो हस्बे मामूल अपनी सहेली के घर थी। दोनों हंसी में मगन कि अचानक गली से एक आवाज़ गूंजी। चूड़ियाँ वाली चूड़ियाँ ले लो कुड़ियो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगियाँ चूड़ियाँ। आपदे अब्बी नूं कहना फिक्र ना करो पैसे दी, पैसे आने जाने दी चीज़ हैगी आ। आजो कुड़ियो, रंग बिरंगियाँ चूड़ियाँ, लाल वाली पीली वालियाँ। हाँ जी धीए आ जा, दिखा मैनू आपदे हाथ देखो की मैं लैके आई हाँ। आजो देखो, हाय हाय आ ले दिखा अपना हाथ मैनू। बड़े सोहने तेरे हाथ है, फिर भी देखा मैं नाप करा। हाय हाय बड़े बड़े, अल्लाह तेरा भला करे कुड़ियो। देखो होर कितनियां कितनियां सोहनियां रंग ते चुन कुड़ियो, रंग चुनो, किन्ने किन्ने सोहने रंग है। ये भी हटा। चूड़ी वाली ने हथेली की लकीरों पर नजरें जमाई, फिर बेख्तियार उसके मुंह से निकला, हाय अल्लाह, या अल्लाह तिए, अल्लाह तेनू बचावे तिए। हाय अल्लाह, हाय हाय शहरबानो हैरान रह गई। वो उस औरत की घबराहट समझ ना सकी और उसके अल्फाज का मतलब भी जान ना सकी। कुछ दिन वो यूं ही सोचती रही, फिर जिंदगी की हंसी में वो लम्हा गुजर गया और शहरबानो ये बात भूल गई। मगर उसे क्या खबर थी कि किस्मत ने उसकी हथेली पर एक ऐसी दास्तां लिख रखी है जिसे वक्त भी ना मिटा सका।
कुछ दिन बाद गांव में एक सालाना मेला लगा। बानो भी अपनी सहेली के हमरा मेले में पहुंच गई। हर तरफ रंग ही रंग थे, ढोलक की थाप और कह चूड़ी और उरे आ कुड़िए और कुड़िए चूड़ियाँ चुन ला अपनी। हो रही
यूं ही हंसते खेलते मेले की रौनकों में खोए हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सूरज ढलने लगा है। सहेलियां भी कब की इधर उधर बिखर गए और उसे खबर ना हुई। शाम के साए गहरे होने लगे तो बानो ने घर की राह ली। अभी वो थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि फ़ज़ा में बांसुरी की एक मध्यम सुरीली धुन गूंजी। वो बेइख्तियार रुक गई। दूर एक बांसुरी वाला बरगद के पेड़ तले बांसुरी बजा रहा था। ऐसी मीठी, ऐसी दिल में उतर जाने वाली बांसुरी उसने पहले कभी ना सुनी। चंद लम्हे वो खामोशी से उस धुन में खोई रही। जैसे ये उस दुनिया से अलग किसी और जहां की आवाज़ हो। शहरबानो कुछ देर वहीं बैठी गुमसुम उसको सुनती रही। फिर उसे याद आया कि शाम के साए गहरे हो रहे हैं, उसे घर की तरफ चलना है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो घर को चल दी और बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा।
अगली शाम उसकी सहेली के घर मेहंदी और संगीत की महफिल थी। बानो तो वैसे भी हर महफिल की जान थी। उसके बगैर न गीतों में वो रंग, न रक्स में वो रवानी, न हंसी में वो चमक। वो गाती तो महफिल दमक उठती, वो थिरकती तो ढोल की थाप भी मुस्कुरा देती। माया आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया तेरी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आवो सामने कोलों दी रुस के ना रंग माया
दी तोर पंजाब बल्ले 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 मोमबत्तिए जागल तेरा माँ दिए मोमबत्तिए बल्ले 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 ननी चाल वाली बल्ले बल्ले और दीदी छोड़ वाली बल्ले 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 तू मेरी तोर देख ये तू मेरी तोर देख बल्ले 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 संगीत की महफिल रात गए तक सजी रही। ढोलक की थाप पर रक्स, लोकगीत, हंसी कहके और गुनगुनाहट। किसी को वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जब महफिल थमी तो रात काफ़ी ढल चुकी थी। इतनी रात के शहरबानों का अकेले घर जाना मुनासिब ना था, इसलिए उसकी सहेली की बुआ उसे घर छोड़ने साथ चल पड़ी। मैंने नहीं चाहती चलो और बस बहुत हो गया ढोल तमाशा। तुम लोग भी अंदर जाओ और इसका सर ढक के लिया तुम लोग इसके सर ढको सब ढक लेना। चलो रात का वक्त हो गया, कुछ लड़कियों को समझ अकल नहीं है। चलो चलो सब और इसका भी सर ढको। नहीं कल आ जाना तुम मेरे लिए। चलो इतनी रात हो गई, तेरे माँ पे को तेरे दादे को भी मुझे जवाब देना। कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। तुम लोग भी सो, अभी आपको जागती नहीं रहना, सो जाना, खींची तमाशा करती रहती। चल तेरा तो दिल ही लगाएगा, उसको ससुराल नहीं भेजना क्या? उसके साथ जाएगी ससुराल। बुआ आप भी ना बस चल मेरी प्यारी। बुआ यही तो दिन होते हैं 4 इतनी रात हो गई, फिर हमें जंगल से भी गुजरना। लालटेन किधर गई? ये या तो बस मत्ती मार दी मेरे गोले दर्द। दोनों खामोशी से गांव की सुनसान गलियों से गुजरते रहे। कि अचानक वही बांसुरी शहरबानों के कानों तक पहुंची। शहरबानों रुक जाती है। दूर वही बांसुरी वाला उसे बांसुरी बजाता नजर आया। बुआ ये बांसुरी कहाँ बज रही है? बुआ देखो ना कितनी प्यारी बांसुरी बज रही है। पगली अभी तो तू नाच गा के आई है, तेरे दिल में तेरे अभी तक ढोल गीत और बांसुरियां गूंज रही हैं। चल मेरी दी। नहीं बुआ नहीं, तुम्हें बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? कितनी मीठी बांसुरी है, दिल करता है सुनती ही रहूं। तू मेरे साथ आ। चलिए वहाँ कोई नहीं, चल तू मेरे साथ। अच्छा तूने भी अपना सर खुला है, अब मैं समझी। एक तो लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, सर ढक ऐसे ही चली जाती। सोई तो भी हो अपना सर ढक के। बुआ बुआ वो देखो बांसुरी वाला इधर इधर। अरे चलिए कोई नहीं, आजा मेरी सोनी। तुझे तेरे घर ही पास से पहुंचा दूँ यार। क्या हो गया बुआ सोनी? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। देख देख लालटेन से भी देखने कोई नजर नहीं आता।
शहरबानो घर को तो चल दी। हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाहू, हक अल्लाह, अल्लाहू, हक अल्लाह। अल्लाह दे वास्ते कोई पानी पिला दे। हक अल्लाह। कोई है जो इस बाबे नू रोटी खवावे। हक अल्लाह, अल्लाहू। कोई है? बाबा जी। अल्लाहू। बच्चा, अल्लाह तेनू खुश रखे। या अल्लाह, या मौला। बच्चा, तेरी सूरत ते एक नूर भी है ते एक साया भी। हक अल्लाह। अस्तफार पढ़ बच्चा, अस्तफार। बच्चा, शाम टले करो बाहर ना निकली। हक अल्लाह। अल्लाह तेनू अपनी हिफाजत च रखे। हक अल्लाह। बाबा। हक अल्लाह। बाबा सुनो तो। अल्लाहू। हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाहू। फ़कीर की बात सुनते ही बानो खौफज़दा हो गई। पहले चूड़ी वाली, अब ये फ़कीर। आखिर सब उससे डर क्यों जाते हैं? बानो ने रात जैसे तैसे करके गुजारी। अगली रात बानो फिर उस बरगद के पेड़ तले बेख्तियार पहुंच गई। किसी तिलिस्म के हिसार में वो बरगद के पेड़ की तरफ खिंची चली गई, जहां बांसुरी वाला हस्बे मामूल बांसुरी बजाता रहा। वो उसके करीब जा बैठी और सुरीली बांसुरी सुनने लगी। बानो को बरगद के आसपास एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू जैसे उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। हवा में गैर मामूली ठंडक थी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, मैं तुम्हें रोज यहाँ बांसुरी बजाते देखती हूँ। तुम कितनी मधुर बांसुरी बजाते हो। अपना नाम नहीं बताओगे? अच्छा, मुझे अभी जाना है, मैं चलती हूँ।
बानो कुछ सोचकर फिर पलट गई और वापस बांसुरी वाले के पास पहुंची। नहीं बताओगे? मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ, रांझा। आज से तुम्हारा नाम रांझा। बांसुरी वाला हस्बे मामूल बांसुरी बजाता रहा। बानो के दिल में एक ख्वाहिश पलने लगी। काश वो बांसुरी वाला उसी बरगद के साए तले बांसुरी बजाता रहे और वो सारी उम्र वहीं बिता दे। उसे बांसुरी वाले से मोहब्बत हो गई। हाँ, उसे बांसुरी वाले से मोहब्बत हो गई। आज मोरी अखियाँ पर ना लगे, आज मोरी अखियाँ पर ना लगे, पिया प्यारे की आस दास, पिया प्यारे की आस दास। नैनन में नींद कहाँ, नैनन में नींद कहाँ, आज मोरी अखियाँ पर ना लगे। निज घर सा निज सा निज ग म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा घर सा निज ग म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा। अखियाँ ना लगे, पिया प्यारे की आस दास, नैनन में नींद कहाँ, आज मोरी अखियाँ पर ना लगे। रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन, ना आए सजना दिति जाए रैन, नाज मोरी अखियाँ पर निजा 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 म प प प ग म ग निजा निजा प प ग म प निजा निजा प प ग म ग रे। आज मोरी अखियाँ पर ना लगे, आज मोरी अखियाँ पर ना लगे। उस दिन के बाद हर शाम उन दोनों की हो गई। वो बांसुरी बजाता और बानो उसके सामने बांसुरी सुनती रहती, जैसे किसी तिलिस्म के हिसार में। ये राज बानो ने सबसे छुपा कर रखा। अब उसके दिन रात बांसुरी वाले के ख्यालों में गुजरते। अगली शाम हस्बे मामूल बानो बरगद के पेड़ तले जा पहुंची और हस्बे मामूल फिजा में अजीब सी खुशबू थी। हवा में वही गैर मामूली ठंडक थी।
मैंने तो तुम्हारा नाम रख दिया रांझा, मुझे मेरा नाम नहीं पूछोगे? शहरबानो। या अल्लाह, मगर मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए जाने जाओ और तुम कहलाओ शहरबानो का रांझा। हाँ, शहरबानो का रांझा, शहरबानो का रांझा। उस लम्हे बरगद के पेड़ के गिर्द धुंध फैलने लगी। हवा में वही पुरस्कार खुशबू रच बस गई और गैर मामूली ठंडक दोनों हाथों में हाथ डाले उस दुनिया से कहीं पार चले गए और देखते ही देखते दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए।
आज भी पंजाब के कुछ बुज़ुर्ग कहते हैं, जब शाम ढलती है और मिट्टी की खुशबू हवा में फैलती है, तो दूर एक अनजानी बांसुरी कहीं सुनाई देती है। मिट्टी की भीनी सी खुशबू और गैर मामूली ठंडक। ये ख्वाब था, एक शराब था। मोहब्बत में कोई किसी दूसरी दुनिया में जा सकता है, एक शराब की दुनिया। और आज शाम आप लोग जब घर लौटें और दूर कहीं अनजानी सी बांसुरी सुनाई दे, तो एक लम्हे को ये सोचिएगा कि कहीं शहरबानो अपने रांझे के हमरा सफ़र पर तो नहीं है। हाँ, शहरबानो अपने रांझे के हमरा, शहरबानो का रांझा। Thank you so much. Thank you. Can we have all the cast here? आपकी तालियां बताएंगी कि कैसा था। हम अपने म्यूजिशियंस को प्लीज स्टेज पे ले आए। इनके बगैर तो थैंक यू सो मच। और एज ए सेड के सबसे पहले तो स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान जिनका प्लेटफॉर्म था और उनका सबसे बड़ा हाथ है इस शो को लाने के लिए, और हैविंग अ ट्रस्ट, हमारे जो काम है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। एंड एक बात जो बतानी तो नहीं चाहिए, सब रिहर्सल के बगैर था यहाँ पे। सो हम नर्वस तो थे, लेकिन आई फेल्ट के सबने अच्छा किया, राइट? Qasim, I have no words. और यहाँ पे फॉर्मल रिहर्सल हुई नहीं है, समटाइम होता है, बट I have no words for Qasim. जैसा ये गाते हैं, गॉड, उनके राग और उनके आलाप और मैंने नहीं सुना है अब तक यहाँ पे। सो कासिम के लिए प्लीज़ थैंक यू कासिम। और कासिम के साथ हैं हमारे अगले म्यूजिशियन साबिर, तबले पे थे, और भरपूर तालियां इनके लिए। एज अ साइड के पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की, स्पेशली म्यूजिशियन और हमारे रांझा जी। इस रांझे और इसके बांसुरी के बगैर ये स्टोरी नहीं होनी थी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अ गाय हु प्लेज फ्लूट, एंड दैट्स अली शेर। अब आते हैं हमारी कास्ट के सभी जो नगीने हैं, उसमें हमारे फ़कीर हरमीत, और हरमीत ऑल्सो रक्स आर्ट के डायरेक्टर हैं, तो सॉरी कि आपको फ़कीर बनाना पड़ा। ओके, और ही इज़ बीन एन अमेजिंग, सो ह्यूज क्लैप। मेरे साथ है सिद्रा। These are my people. Without them, it was impossible. शहरबानो। What an amazing performance, रवनीत कौर और
हमारे साथ तो बहुत काम कर रहे हैं एंड विदाउट रिहर्सल्स दीज गाइज आर जस्ट परफॉर्मिंग. अगर रिहर्सल हो तो क्या हो. सो बेस्ड इन लेस्टर एंड amazing dancer and dance artist, classical. Sumaira, again, all these are part of our group. हमारे जितने भी shows होते हैं, and then as a grassroots organization, we are bringing art in the community, and especially predominantly Pakistani and Kashmiri communities. बहुत ज़रूरत है art, culture, empowerment, identities, heritage. So we need more of this kind of stuff in the community. हमारे साथ ढोल आर्टिस्ट शगुफ्ता जी. ढोलकी के गाने कैसे थे, by the way? Was it good? Okay, great. इनकी ढोलक के बगैर भी कुछ नहीं होना था. सीमा जी हमारी दुल्हन. और जो कल मौजूद थे, सीमा जी ने होस्ट भी किया था कल का शो आउटडोर थिएटर में. सो दैट्स सीमा. सीमा के साथ हमारे साथ है सना. ग्रेट स्टफ सना. उसके साथ है तस्नीम. ग्रेट स्टफ गर्ल्स. दीज आर ऑल माय गर्ल्स. एंड वी हैव उनके नेक्स्ट जो है वो यास्मीन जी. ग्रेट. और हमारी बुआ जी चांदनी. थैंक यू सो मच. और आज की हमारी जो है तकरीब कहूँगी, शो कहूँगी, परफॉर्मेंस इख्तिताम को पहुँचती है. और हम सब की तरफ से आपको थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट. And a huge love for Spirit of Pakistan team, steering group, हमारे tech पे I think it's Mike, done an amazing job, less timing. और इरफान जो हमारे मीडिया पे हैं, Ash on this side, and again all the steering committee, Deborah, thank you so much. Each and every one of you. Mukhtar, festival director. Is Mukhtar in the audience? Where is he? Oh, he's waving from right at the back. Okay, great. Thank you so much, everybody. Thank you. फिर किसी शाम, किसी सफ़र में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.